अभी बताया, like she mentioned that the sports championship of powerlifting will be from 6th May to 12th. 14 countries are participating. So it's time for the March Past. जी हाँ, अभी March Past हमारे बीच होने वाली है. One by one, each country will come with their flag and greet Honorable CM Sir and our dignitaries on the stage. एक एक करके जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं जो अलग अलग कंट्री से आए हैं अपने फ्लैग के साथ ग्रीट करेंगे स्टेज पे माननीय मुख्यमंत्री जी को और हमारे सारे डिग्निटरीज को. Once again, I would like to invite all the countries, and our first country is AIN, Athlete Individual Neutral. A big round of applause. एक और जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं AIN. I invite you with your flag on the stage to greet our CM Sir, Honorable CM Sir and dignitaries. That we are using with AIN. Next is Chinese Taipei. Chinese Taipei. Chinese Taipei. Hong Kong. Come a little faster. Let's be in our sports spirit and make our spirits high. Honorable Chief Minister of Uttarakhand is greeting the participants of Chinese Taipei with the traditional Uttarakhandi topi. This is our Uttarakhandi hat, traditional hat. Hong Kong. Iran, kindly be ready. Japan, kindly be ready. Thank you so much, Team Chinese Taipei. Next, Hong Kong. Hong Kong, Iran, Japan, Kazakhstan, Kuwait, kindly please line up. Kyrgyzstan, kindly please assemble. Malaysia, Mongolia, Philippines, Singapore is also participating. They're not here. Uzbekistan, Japan. Ladies and gentlemen, I would like to tell you that this is the opportunity to meet and greet Honorable Chief Minister of Uttarakhand by this traditional Uttarakhandi hat that we are presenting. It's a historic moment for all of you. Next, Kuwait. Come on, let's show some energy. एक बार please जोरदार तालियां. A big round of applause everyone. एक बहुत ही ऐतिहासिक पल है ये उत्तराखंड के लिए. Kazakhstan, can you please step forward? Special, it's a very, very special moment. Kyrgyzstan, can you step forward? Thank you, Kazakhstan. Honorable Chief Minister of Uttarakhand is presenting our traditional hat to these participants
What a luck, what a fortune it is. Next, Uzbekistan, please step forward. Philippines, kindly step forward. Philippines. Please, जोरदार तालियां. Philippines, kindly step forward. Team India, kindly be ready. Team India. Malaysia, kindly step forward. Indeed, a fortune. बहुत ही खास पल हम सभी के लिए, हम सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए खुद हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री जी प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए आए हैं हमारे पार्टिसिपेंट्स का. और हमारे गिफ्ट भी साथ में. नेक्स्ट टीम इंडिया. टीम इंडिया के लिए बहुत ही खास पल. वो 14 कंट्रीज जो कि 2025 एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करेंगे और यहाँ पे हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री जी प्रोत्साहन बढ़ाते हुए सबका. थैंक यू सो मच डिग्निटरीज. और अब आप सभी के बीच आप लोग बैठ जाइए. काइंडली प्लीज सेटल डाउन. एक बहुत ही खास पल है ये, क्योंकि हमारे बीच हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड के श्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं. और उत्तराखंड में इस बार 38वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी भी हुई है. आज हम इनॉग्रेशन सेरेमनी कर रहे हैं एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप की. और भी उनके योगदान की वजह से उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है. तो एक बार प्लीज जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं डाइस पे माननीय मुख्यमंत्री जी का. भारत माता की, भारत माता की. एशियन सब जूनियर यूनिवर्सिटी कप पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप के इस शुभारंभ अवसर पर मंच पर आसीन उत्तराखंड सरकार में मेरे साथ खेल मंत्री आदरणीय रेखा आर्य जी, राजपुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय खजानदास जी, विशेष प्रमुख सचिव खेल श्री अमित सिन्हा जी, श्री प्रशांत आर्य जी, श्रीमती ततियाना किर्गिस्तान महासचिव एशियन पावर लिफ्टिंग एवं यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी खेल संघों से आए हुए सभी हमारे पदाधिकारीगण, सभी प्रतिनिधिगण और पूरे दुनिया भर से अनेक देशों से आए हुए सभी इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी पावर लिफ्टर, मैं सभी का आज इस अवसर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं. आप सबका अभिनंदन करता हूं. आप सबका वेलकम करता हूं. इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले आप सभी ऊर्जावान खिलाड़ियों के बीच आकर मुझे अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है. एक अलग प्रकार की ऊर्जा का भी यहाँ पर अनुभव हो रहा है. और जैसा कि मुझे बताया गया कि 5 मई से 12 मई तक आयोजित हो रही इस पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत सहित एशिया महाद्वीप के 15 देशों के करीब 300 से अधिक प्रतिभाशाली खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं. आज के इस शुभ अवसर पर मैं आप सभी को अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं और कामना करता हूं कि आप सभी अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से अपने देश और राज्य का नाम रोशन कर खेल जगत में
एक नई पहचान स्थापित करें। भाइयों बहनों, भारतीय इतिहास में शारीरिक शक्ति और कौशल का एक विशेष स्थान है। प्राचीन समय में जहां हमारे पूर्वज मुगदर, गदा और हल जैसे पारंपरिक उपकरणों से अपने बल का और अपने परिश्रम का प्रदर्शन करते थे, वहीं आज उनकी जगह वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग जैसे आधुनिक खेलों ने ले ली है। आधुनिक पावर लिफ्टिंग में जो वजन उठाने के तरीके हैं वो इन पारंपरिक भारतीय खेलों से ही प्रेरित हैं। पावर लिफ्टिंग जैसी प्रतिस्पर्धाएं न केवल युवाओं में आत्मविश्वास और अनुशासन को बढ़ावा देती है, बल्कि उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से सशक्त बनाने में भी बहुत अहम भूमिका निभाती है। अभी मैं सभी जब विभिन्न देशों के खिलाड़ियों से मिल रहा था, उनके द्वारा जो परिश्रम से अपने शरीर को एक सांचे में ढाला गया है, वो सच में बहुत काबिल तारीफ है। मैं सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। और भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने प्रारंभ के काल से ही देश के अंदर एक खेलों का कल्चर प्रारंभ किया। खेलो इंडिया और फिट इंडिया जैसे मूवमेंटों से देश की खेल संस्कृति को जहां बढ़ावा देने का काम किया, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में भारत खेलों के क्षेत्र में भी नई ऊंचाइयों को छू रहा है, तो और वैश्विक मंच पर अपनी एक विशिष्ट पहचान बना रहा है। चाहे वो खेलों का कोई भी खेल हो, हर खेल में आज भारत के खिलाड़ी भारत के तिरंगे की शान को लहरा रहे हैं, भारत के तिरंगे को ऊंचा लहरा रहे हैं। उनके मार्गदर्शन में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हमारी सरकार भी उत्तराखंड के अंदर खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इसी वर्ष हमारे राज्य के अंदर हुए 38वें राष्ट्रीय खेलों में जहां इन खेलों का एक सफल आयोजन हुआ, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उसके शुभारंभ के अवसर पर थे। उन्होंने हमारा प्रोत्साहन किया और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने खेलों के समापन अवसर पर हम सबके बीच में आके हमको प्रोत्साहित करने का काम किया। और इससे बड़ी बात कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो पूरी दुनिया का सबसे अधिक प्रसिद्ध उनकी मन की बात का जो एपिसोड है, मन की बात के एपिसोड में भी उत्तराखंड में हुए राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए उन्होंने राज्य की भूरी प्रशंसा की। हम सबको अपने तरफ से कहीं न कहीं प्रोत्साहन देने का काम किया और ये 38वें राष्ट्रीय खेल, इन राष्ट्रीय खेलों ने देवभूमि को खेल भूमि के रूप में भी स्थापित करने की ओर हमारा मार्ग प्रशस्त किया। इस बार के राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने 100 से अधिक पदक जीतकर इतिहास रचते हुए राज्य का गौरव बढ़ाने का महत्वपूर्ण कार्य किया। हमने उत्तराखंड में 570 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक स्टेडियम बनाने के साथ लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल उपकरण लाकर उत्तराखंड में विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर स्पोर्ट्स विकसित किया गया है। इसी का परिणाम है कि आज उत्तराखंड केवल राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए भी एक महत्वपूर्ण स्थान बन रहा है, जिसका एक उदाहरण आज ये होने वाली प्रतियोगिता, ये पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता भी है। इसके साथ ही आज विश्व स्तरीय स्टेडियम और खेल सुविधाएं प्रदेश के खिलाड़ियों की ट्रेनिंग का एक मजबूत आधार बन रही है। अभी जैसा खेल मंत्री रेखा जी ने बताया कि आज आइस स्केटिंग रिंग, जो कि भारत के अंदर अपने आप में एक अलग प्रकार की रिंग है, आज उसका भी एक बार जीर्णोद्धार होने के बाद आज उसका लोकार्पण किया गया है और आने वाले समय में वो हमारे देश और पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के लिए एक बहुत शानदार स्थान होने वाला है। उत्तराखंड को खेल भूमि के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से हमारी सरकार राज्य में शीघ्र ही स्पोर्ट्स लीगेसी प्लान भी लागू करने जा रही है, जिसके अंतर्गत प्रदेश के 23 प्रमुख शहरों में खेल अकादमी की स्थापना की जाएगी। इन अकादमियों में प्रत्येक वर्ष 920 विश्व स्तरीय एथलीट
1000 अन्य खिलाड़ी उच्च स्तरीय ट्रेनिंग ले पाएंगे। इतना ही नहीं, हमारी सरकार द्वारा हल्द्वानी में राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय एवं लोहाघाट में एक महिला स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापित करने की दिशा में भी तेजी से कार्य किया जा रहा है। भाइयों बहनों, प्रदेश में खेलों के समग्र विकास और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हमारी सरकार एक नवीन खेल नीति भी हमने प्रदेश के अंदर लागू की है। इसी नीति के अंतर्गत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए आउट ऑफ टर्न नौकरी दिए जाने का भी प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही हमारी सरकार मुख्यमंत्री खेल विकास निधि, मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी योजना, खेल किट योजना जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य के उभरते हुए खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के अनेक कार्यक्रम आयोजित कर रही है। यही नहीं, हम उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार, हिमालय खेल रत्न पुरस्कार प्रदान कर खिलाड़ियों की योग्यता को भी लगातार सम्मानित और प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमने राज्य की राजकीय सेवाओं में खिलाड़ियों के लिए 4% खेल कोटे को पुनः लागू किया है, जो एक बार बंद हो गया था, जिससे हमारे खिलाड़ियों के परिश्रम और उत्कृष्टता को और उचित अवसर और सम्मान मिल सके। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी खिलाड़ियों से ये कहना चाहता हूं कि खेल में हार जीत से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है स्पोर्ट्समैनशिप, खेल भावना होती है, क्योंकि ये हमारे अनुशासन, धैर्य, सहनशीलता और हमको परस्पर सम्मान सिखाती है, जो केवल खेल परिसर तक ही सीमित नहीं रहती बल्कि जीवन के हर पहलू में हमको मार्गदर्शन का काम करती है। जीवन के हर क्षेत्र में अगर ये भावना, खेल भावना हो तो हम चल लगातार कभी हम सफलता को प्राप्त करते हैं, कभी पीछे रह जाते हैं, लेकिन अगर खेल भावना हमारे अंदर है तो लगातार हम कर्म करते रहेंगे, लगातार प्रयास करते रहेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि ये भावना आप सभी को न केवल खेलों में बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सफलता देने में सहायक सिद्ध होंगी। इसी विश्वास के साथ आज इस आयोजन में शामिल सभी खिलाड़ियों को, जो दुनिया के अनेक देशों से आए हैं, सभी प्रशिक्षकों को, आयोजकों को और खेल प्रेमियों को विशेष रूप से बधाई देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां। मैं निवेदन करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे 2025वीं एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का इनॉग्रेशन करें। आगे बढ़ के यहाँ पे ये जो रिबन है उसे काट के हम इनॉग्रेशन करना चाहेंगे। We would like to inaugurate 2025 Asian Powerlifting Championship, Sub-Junior and Junior. And on behalf of the Powerlifting Federation, if you can do a deadlift, sir. Honorable CM, sir, if you can do the deadlift. Wow! वाकई में हमारे उत्तराखंड की यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद। It is an iconic moment for all of us. Please kindly be seated. And now we would like to present a memento, a token of appreciation to our Honorable CM Sir, Mr. Amit Sinha. I request kindly present a token of appreciation. Thank you so much, sir. आपका बहुत बहुत हृदय से शुक्रिया, स्वागत कि आपने आज इस सेरेमनी में आके हम सभी पार्टिसिपेंट्स का, हमारा जूरी मेंबर्स का, ऑफिशियल्स का प्रोत्साहन बढ़ाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां एवरीवन, एक बहुत ऐतिहासिक पल है सभी के लिए। I request Mr. Vikram Pathania to kindly present the memento to Rekha Arya ji, हमारी स्पोर्ट्स मिनिस्टर of Uttarakhand. Mr. P.J. Joseph, kindly be on stage. It was all that happened. हमारी पर्सनलाइज्ड जर्सी माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, Mr. Vikram Pathania, kindly present the memento to Rekha Arya ji.
A big round of applause, everyone. Zordar taaliya. Dhanyawad, ma'am. Mr. P.J. Joseph. Kindly present the memento to Mr. Khajan Das ji. A big round of applause, everyone. Zordar taaliya. Mr. Aman Pura, kindly present the memento to Miss Tatiana Romanova. A big round of applause, everyone. Mr. Fayaz Ahmed, kindly present the memento to Mr. Amit Sinha ji.